सीए ओ भाई जल्दी करें. Lecture number 61. Okay. Now we will try to speak English from now onwards. Okay. So let's start the chapter of AOP, guys. Okay, you have already started. That's nice. So you know it is called as chapter number 12, Association of Persons. Yesterday, kids, we did an example regarding ABC of this chapter. I hope you remember that example. Let me show you what I am trying to say. Little kids, I am talking about this example. I hope you remember more volley income and more volley tax and less volley income and less volley tax. This calculation will be performed in the numerical of partner. More volley income, less volley income will be performed in the numerical of partner. This calculation will not be performed in the numerical of AOP. Rather, it will be performed in the numerical of partner. Firstly, little kids, we will calculate taxable income and tax liability of AOP. Then we will perform divisible income working. We will perform divisible income working. Then we will perform the numerical of partners. इसके बाद हम then we will perform the numerical of partners. I hope I got it. Let's Control C. Come in KF2 March 2025. So it's a time for Control V. That's nice, guys. Now we will try to explain English in English. That's impossible. No, guy. We will make it possible today. What type of guys are... An AOP shall be liable to pay tax separately from the partners. An AOP shall be liable to pay tax separately from the partners. AOP shall be liable to pay tax separately from the partners. And where the AOP has paid the tax, the amount received by partner out of income, the amount received by partners out of this income shall be exempt from tax. The amount received by partners out of that income shall be exempt from tax. So, share from AOP line being inserted by us is exempt from tax. So, this is how we will explain English in English. So, it was a line being inserted yesterday. I hope you remember. So, now you will place your fingers in your homes right here, and then you will start speaking with yourself. How? From here. An AOP shall be liable to pay tax separately from the partners. Your finger will keep on moving from partners. And where the AOP has paid the tax
the share of each partner from the income of AOP shall be exempt from tax. However, is there anything however like that? Oh no, sorry, I take my however back. The amount received shall be exempt from tax. So I think it's enough for today. Now we will come back to Pakistan. तो ये अमाउंट जो है इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ये अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट होगी टैक्स से. क्लियर? ओके. अगर कोई एक पार्टनर भी एओपी का कंपनी है, जैसे हमने वो मिसाल की थी ना, पीटीसीएल और इंजमाम, इन्होंने मिलके एक एओपी बनाई हुई है. हद हो गई, कल कुछ याद करने को नहीं दिया मैंने, फिर चैप्टर 5 को रगड़ दिया मैंने, चैप्टर 6 को भी साथ रगड़ दिया मैंने. एक आध देखी जाएगी, फिर याद करने को नहीं देते कुछ. हद हो गई. न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल. मैं तो फिर पता ही है मेरा तुम्हें, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगा मैंने कितना बड़ा. तो 40% पीटीसीएल का था या 40% इमाम का था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वैसे ही जो पिछली मिसाल हमने की थी 40% पीटीसीएल का था. सो बोले कंपनी इज पार्टनर ऑफ एओपी. लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर. बोले कंपनी इज पार्टनर ऑफ एओपी, यानी कंपनी ने एओपी में इन्वेस्टमेंट की हुई है. इफ वन मेंबर ऑफ एओपी इज अ कंपनी, एटलीस्ट वन तो उसने इसलिए लिखा है, कम से कम एक हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं. इफ वन पार्टनर ऑफ एन एओपी, पार्टनर ही होता है ना मेंबर. इफ वन पार्टनर ऑफ एन एओपी इज अ कंपनी, द शेयर ऑफ कंपनी शेल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ एओपी. कंपनी का शेयर एओपी की टोटल इनकम में से निकाल दिया जाएगा. एंड कंपनी शेल पे टैक्स सेपरेटली एट द रेट एप्लीकेबल टू द कंपनीज. कंपनीज अपने रेट के ऊपर इसके ऊपर क्या देंगी? टैक्स देंगी. अच्छा, ये ना इंशाल्लाह हमने इसका न्यूमेरिकल करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर देता हूं, अगर आपको समझ आता है. असल में फर्ज करें मिस्टर ए की जगह मिस्टर ए कंपनी है, तो मिस्टर ए का हिस्सा बन रहा है 8 लाख में से 3,20,000. तो हम किया ये करेंगे, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा. हम 8 लाख के नीचे एक माइनस का साइन लगाया करेंगे. आज तक हमने कभी टैक्सेबल इनकम के नीचे माइनस का साइन नहीं लगाया. टोटल इनकम के नीचे ज़कात माइनस करके टैक्सेबल इनकम निकालते थे, लेकिन टैक्सेबल इनकम के नीचे माइनस का साइन नहीं लगाया. ये पूरे सिलेबस में एक वाहिद एडजस्टमेंट होगी जिसमें हम टैक्सेबल इनकम के नीचे माइनस का साइन लगाएंगे. और टैक्सेबल इनकम के नीचे माइनस का साइन लगा के 3,20,000 कंपनी को दे देंगे, एज्यूमिंग ये कंपनी है. बाकी जो बच जाएगा उस पे एओपी खुद टैक्स देगी, और जो कंपनी के पास चला जाएगा उस पे कंपनी 35% के एतबार से, जो भी कंपनी का रेट बन रहा है, 35 नहीं आजकल कुछ हो रहा है मेरे ख्याल 32 कितने, तो कंपनी जो भी रेट है, तो कंपनी अपने रेट के एतबार से उस पर टैक्स देगी. तो अब जरा बोलें, एओपी की टैक्सेबल इनकम में से माइनस करेंगे कंपनी का शेयर, उस पे कंपनी खुद टैक्स दे देगी, बाकी बचे हुए पे एओपी टैक्स दे देगी. एओपी टैक्स दे देगी. लेकिन ये डिविजिबल इनकम वाली कैलकुलेशन में नहीं किया करेंगे. डिविजिबल इनकम फिर बाकी पार्टनर्स में डिवाइड किया करेंगे. वो कभी आने दें सवाल, ऐसे हवाई बातें तो नहीं समझ आती ना. तो इस कैलकुलेशन में नहीं करना, ये बारो बारी कराने, फेस के ऊपर ही इंशाल्लाह किया करेंगे. तो अब जरा पढ़ने की कोशिश करें. अगर एक पार्टनर एओपी का क्या है? कंपनी. द हिस्सा ऑफ कंपनी शैल बी इंक्लूडेड फ्रॉम टोटल इनकम ऑफ. टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम एओपी की बराबर ही होती है ना, इस वजह से कि ना एओपी ने ज़कात देनी है, ना एओपी के बच्चे हैं. सुना एओपी ने शादी कर ली और एओपी के हाँ जो है वो बेटा हुआ है माशाल्लाह. एओपी तो बिजनेस है ना.
पीटीसी यूफोन की शादी होगी, उसके बाद जो है वो रॉयल फैन पैदा हुआ। सो हाइट ऑफ एनीथिंग रियली अजीब टू। अच्छा, इफ एट लीस्ट वन पार्टनर ऑफ एओपी is a company, the hissa of company shall be thrown away. The hissa of company shall be thrown away from the total income of AOP की इनकम से बाहर फेंक दें। लिखें न्यूमेरिकल के फेस पे AOP की टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर दिया करेंगे। न्यूमेरिकल के फेस पर AOP की टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर दिया करेंगे। न्यूमेरिकल के फेस पर एओपी की इसने तो टोटल इनकम लिखा हुआ है, लेकिन वो टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम बराबर होती है। न्यूमेरिकल के फेस पर टैक्सेबल इनकम में से कंपनी का हिस्सा माइनस कर दिया करेंगे। हट जाओ भाई, भाई आ गए हैं यार, लेटना आया करो ना। न्यूमेरिकल के फेस पर मुस्कुरा तो दो यार, लेट आने वाले। ये पीछे देखा जा रहा है हाइब्रिड रो में, पहली रो में बार बार। अच्छा, न्यूमेरिकल के फेस पर एओपी की टैक्सेबल इनकम निकालते हुए कंपनी का हिस्सा माइनस कर देंगे। इंग्लिश देखें जरा, याद हो जाएगी, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल नहीं किया ना, तो इंग्लिश याद करना फिर। इफ एटलीस्ट वन पार्टनर ऑफ एओपी इज द शेयर ऑफ कंपनी शेल बी थ्रोन अवे फ्रॉम द। अब थ्रो अवे करके लेके कहां जाएंगे? नहीं, न्यूमेरिकल के फेस पे नहीं, थ्रो अवे करके कहां लेके जाने, वो आपके सिलेबस में नहीं है। वो कंपनी फिर खुद इस पर टैक्स देगी, वो तो आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ थ्रो अवे करना हमारे सिलेबस में होगा। फिर लेके कहां जाना है वो तो मैंने आपको उर्दू में लिखवाया ही नहीं। लेके जाना है कंपनी का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए उसकी टैक्सेबल इनकम में, लेकिन वो मैंने आपको इसलिए बात नहीं लिखवाई कि वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो निकालना आउट ऑफ सिलेबस है, आगे अगले को लेके कहां, सॉरी निकालना विद इन सिलेबस है, आगे अगले को लेके कहां जाना है ये तो हमारे स्कोप में नहीं है। आगे जो हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकली नहीं है वो इंग्लिश में पढ़ लें। एंड द कंपनी शेल पे टैक्स सेपरेटली एट द रेट एप्लीकेबल टू द कंपनीज। फिर कंपनीज वाले रेट के ऊपर टैक्स दे दे इस पर। तो इसका सवाल है पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 पेज 276 पे। नहीं, वहां क्यों जा रहे हैं, बस यहाँ लिखना है बस। पास्ट पेपर क्वेश्चन 8 लेकिन ये अभी कर नहीं सकेंगे, ये हम लॉसेस के चैप्टर के बाद करेंगे। ये इंशाल्लाह जनवरी में करेंगे ये न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, कंपनीज के लिए जो है ना वो ऑडिट कराना एससीसीपी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक किन कंपनीज के लिए ज़रूरी है, किन के लिए नहीं है, ये एक अलग बहस है। ये बहस तो हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन इस साल हुकूमत ने ये कहा है कि जिन एओपीज की सेल 300 मिलियन या उससे ज्यादा है, जिन एओपीज की सेल 300 मिलियन या उससे, वो एओपीज ऑडिट करवाएं। वो एओपीज क्या करवाएं? ऑडिट करवाएं। अगर वो एओपीज ऑडिट नहीं करवाती, किसकी सेल 300 मिलियन से ज्यादा हो? एओपी की सेल। अगर वो एओपीज ऑडिट नहीं करवाती तो इसका नुकसान देखिएगा क्या होगा। फर्ज करें हमारी एओपी की सेल 300 मिलियन से ज्यादा है, सेल की बात कर रहा हूं, ये तो टैक्सेबल इनकम है। टैक्सेबल इनकम तो कितनी भी हो सकती है, सेल सवाल में दी नहीं हुई। फर्ज कर लें इसी एओपी की इनकम 300 मिलियन से ज्यादा हो और ये ऑडिट ना करवाए, तो सारा न्यूमेरिकल इसी तरह सॉल्व होगा, ये वाला पोर्शन इसी तरह सॉल्व होगा। 8 लाख जाएगा यहां इसी तरह, ये इन दोनों के अंदर तकसीम होगा। लेकिन जब 3,20,000 और 8,40,000 निकलेगा, 3,20,000 और 4,80,000 निकलेगा, तो जब ये 3,20,000 आएगा फिर ये एग्जाम नहीं होगा। फिर इसका मेरे ख्याल से नुकसान ये होगा कि हम पेपर में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि ये टैक्सेबल इनकम निकालेंगे और यही एक्चुअल टैक्स निकल आएगा 39,000, और फिर ये वाली कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स तो कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स बताओ, क्योंकि ये एग्जाम्प्ट ही नहीं है। जब ये एग्जाम्प्ट ही नहीं है तो फिर ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो लेट मी एक्सप्लेन अगेन
जिस एओपी की सेल, टैक्सेबल इनकम मैं नहीं कह रहा, सेल कह रहा हूं, इसकी सेल तो मुझे दी नहीं हुई सवाल में। जिस एओपी की सेल साल में 300 मिलियन या उससे और वो एओपी अपना ऑडिट ना करवाए, तो वर्किंग में जाके पार्टनर्स को हिस्सा बांटें, लेकिन जो पार्टनर का हिस्सा बने इसे एग्जेम्प्ट ना करें। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? यही आपकी टैक्सेबल इनकम है और यही उस पर, बल्कि 39,000 को थोड़ा बाहर करके हम लिख देंगे, और ये वाली कैलकुलेशन फिर परफॉर्म वाई, क्योंकि ये इनकम एग्जाम्प्ट ही नहीं। क्लियर हो गया तो हाथ खड़ा कर दें। ओके, हाइब्रिड वाले भी कंजूसी करते हैं कुछ जी। वेल डन, with full zeal and zest sometimes you raise your hands. इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करें। अगर एक एओपी की सेल 300 मिलियन या उससे ज्यादा है इस साल, या किसी, बोलें, या किसी पिछले साल, यानी पता कहना क्या चाह रहे हैं, किसी भी साल तुम्हारी सेल 300 मिलियन से ज्यादा होगी ना, तो आज के बाद बस तुम मारे गए हो। हर साल की सेल अलग अलग नहीं देखनी। एक दफा भी तुम्हारी सेल 300 मिलियन से ऊपर निकल गई ना, बस तुम पकड़े गए। चाहे पिछले साल की सेल 300 मिलियन थी, इस साल की 280 है, फिर भी तुम मारे गए। फिर भी तुम्हारे लिए ऑडिट कराना जरूरी है। बस तुम उस थ्रेशोल्ड के करीब एक दफा टच कर गए हो तो तुम्हारा लेवल है फिर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस साल सेल 300 मिलियन नहीं, किसी भी साल 300 मिलियन अगर हो गई है तो आज के बाद आप बड़ी एओपी हैं, चाहे आपकी सेल अब जितनी मर्जी गिर जाए, वो उसने नहीं देखा। If an AOP has a sale of 300 million or above during the year on any preceding year, कौन से? पिछले 3, पिछले 4, पिछले 5, कोई भी। The share of partner कितना निकला था? 320 और 480 will be exempt only, ये exempt हो जाएगा कब? If financial statements are duly audited by a firm of CA or firm of cost and along with income tax, और आपने रिटर्न भी जमा करवानी है। दो शरायत है मादरत, ऑडिट भी करवाना है और रिटर्न भी जमा करवानी है। अगर आप ये दो शरायत पूरी कर दें, रिटर्न के साथ आप ये जमा करवा दें जाके। जब आप रिटर्न जमा करवाने जा रहे हो, साल के एंड पे रिटर्न आपको पता है ना 30 जून वाले साल की 30 सितंबर को जमा होती है, तो 30 सितंबर को जाके आप रिटर्न भी जमा करवाएं और अपने एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स भी जमा करवाएं। ओके, आगे चलें। सेक्शन 88, अगर किसी साल a partner has taxable income and derives share from AOP, अगर किसी साल a partner has taxable income and derives share from AOP, इसकी अपनी भी जाती इनकम है और AOP से भी कम आ रहा है। हैज जाती टैक्सेबल इनकम, इसकी अपनी जाती टैक्सेबल इनकम भी है, एंड डिराइव शेयर फ्रॉम एओपी। जाती इनकम इसकी कितनी है पार्टनर ए की? 540, और एओपी से कितना कमा रहा है? 320। सब नोट नहीं करना, 320। The amount of tax on taxable income shall be computed as follows. Where a partner has taxable income and derives share from, the amount of tax shall be calculated as per following formula: A over B into C. A is the tax assumed, A is the tax assume amount derived from AOP is chargeable. A is the tax assume amount derived from AOP is chargeable. हमने चार्जेबल की है, इनकम में डालनी है। असल में ज्यादा वाले टैक्स का बहुत मुश्किल नाम है। ज्यादा वाले टैक्स का उसने नाम रखे
is the amount of tax assuming amount received from AOP is, हालांकि ये एग्जाम्प्ट है, कहते थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो ये चार्जेबल है, ए वो वाला टैक्स हो गया. B is the taxable income assuming amount derived from AOP is chargeable to tax, ये वाली B. And C is the actual taxable income. C is the, A is the tax assuming amount derived from AOP is chargeable. B is the taxable income assuming amount derived from AOP is chargeable. And C is the actual taxable income. I hope it's clear. But the English is bit Angrezi type. A is the tax if the amount derived from AOP is chargeable. 320 को इनकम में डाल के देखो. B is the taxable income of the individual if the amount derived from AOP as a share is, if का मतलब क्या, assume. B is the taxable income if the amount derived from AOP is chargeable. If I assume it is chargeable, then what is taxable income? इस टैक्सेबल इनकम का ना असली नाम मैंने कल एक दफा लिखा था, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस. इसको टैक्सेबल इनकम कह सकते हैं, इसको टैक्सेबल इनकम फॉर रेट बढ़ाना. एंड सी इज द इंडिविजुअल्स एक्चुअल टैक्सेबल इनकम. सी उसकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है. बोलें, A is the tax assuming amount derived from AOP is chargeable. B is the taxable income assuming amount derived as share from AOP is Chinmin Hong, Chinese Chung Mong. And C is the actual taxable income. अच्छा, ये ना पार्टनर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए है. अ पार्टनर एज अ पार्टनर ऑफ एन एओपी, ये पार्टनर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए है. ये तो एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए रूल पढ़े थे ना हम, पहले वाले एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए रूल पढ़े थे. ये किसके लिए पढ़े हैं? पार्टनर के लिए. एओपी के लिए हमने 3 रूल पढ़े हैं. जब एओपी ये कमा ले और इस पर टैक्स दे दे तो पार्टनर के हाथों में ये अमाउंट एग्जेम्प्ट है. दूसरा एओपी के लिए रूल पढ़ा है कि अगर इसका कोई पार्टनर कंपनी है तो 8 लाख में से उसका हिस्सा थ्रो अवे कर दें. ये एओपी के लिए रूल पड़ा है. तीसरा एओपी के लिए रूल ये पड़ा है कि अगर इसकी साल की सेल 300 मिलियन से ज्यादा है या किसी पिछले साल की, तो ये अपना ऑडिट करा ले, तो ये हिस्सा जो पार्टनर्स को मिल रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ये 3 रूल्स किसके लिए पढ़े हैं? एओपी के लिए. अब हमारी अगली हेडिंग क्या है? पिछली हेडिंग थी प्रिंसिपल्स फॉर टैक्सेशन ऑफ AOP. नाउ अब हमारी हेडिंग है अ पर्सन इज अ पार्टनर ऑफ एन AOP. तो यहां 540 लिखे मैंने, यहां 320 लिखे, यहां 320 लिखे. ओके, नोट इट डाउन. जी सवाल पूछ लेंगे. बस न्यूमेरिकल में सेल नहीं बताई हुई और ऑडिट का जिक्र नहीं है, तो बस नॉर्मल तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करें. और अगर सेल बताई भी होगी तो हम अज्यूम करेंगे ऑडिट तो हो ही रहा है, अनलेस कि वो कह दे ऑडिट नहीं हो रहा. हाँ, अगर सेल बता के ये कहे कि 300 मिलियन या उससे ऊपर सेल है तो क्या 2 ऑप्शंस हैं सॉल्व करने की, तो फिर हम बता सकते हैं अगर ऑडिट हुआ है तो ये ऑप्शन है, ऑडिट नहीं हुआ तो ये ऑप्शन है सॉल्व करने की. चलें, चलो चलिए. दुनिया थी उसनु खोए
अच्छा, मुराकबे से उठा दें। दो बातें इकट्ठी ही समझ लें। अगर एओपी को इधर लॉस आ गया, ये न्यूमेरिकल किस साल का था? दो 2016 बोल रहे हैं कुछ लोग, पता नहीं किड़े पिंडू आए हो तुसी। बाकी रस्ते दौरान नहीं था ना, वो तो व्हाइट बोर्ड पे किया था। बोंगी मारनी हो तो फिर रज के मारे, बंदा मार दिया आपने। इस साल नहीं बताया हुआ। फर्ज करें ये 2024 का साल है, अगर एओपी को इस साल लॉस आ जाता 13 लाख, 8 लाख प्रॉफिट की जगह, तो एओपी का टैक्स होता 0। लेकिन लॉसेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये 13 लाख जो लॉस आया है, ये अगले 6 साल माइनस करने की इजाजत, यानी एओपी अपना लॉस अगले 6 साल के प्रॉफिट्स में से माइनस कर सकती है। औरत है, एओपी अपना लॉस अगले 6 साल के प्रॉफिट्स में से माइनस कर, पहली बात ये हो गई, एओपी अपना लॉस खुद उठा के चलेगी, दूसरों के बोझ नहीं डालेगी। और अगर एओपी को लॉस आ गया तो दूसरी एहतियात जो करनी है, जो कल भी कही थी, कि ये लॉस अपना खुद ही उठा के चले और अगले सालों के प्रॉफिट में माइनस करे। पार्टनर्स की इनकम कैलकुलेट करते हुए एओपी का लॉस माइनस नहीं होगा। यानी ऐसा कोई तस्वुर नहीं है हमारे लॉ के अंदर कि हमें अगर डिविजिबल इनकम में यहां नेगेटिव 13 लाख आ रहा हो, तो मैं आपको बताऊंगा डिविजिबल इनकम वाली वर्किंग ही नहीं हम किया करेंगे। अगर जब कोई इधर नेगेटिव आ रहा हुआ ना, तो मैं आपको कहूंगा डिविजिबल इनकम वाली वर्किंग ही नहीं करनी। एक दिन नेगेटिव आएगा तो मैं ये वर्किंग करके ऐसे काट दूंगा कि पेपर में इसको करना ही नहीं। द रीजन इज कि अगर एओपी को लॉस आया, जैसे कल हमारे सवाल में भी किसी और एओपी को लॉस आ रहा था, तो वो हमने पार्टनर के हाथों में लेस नहीं किया था। तो जो जिसका बच्चा है वो उसको खुद ही संभाले, दूसरों पर मत डाले। तो इसलिए एओपी अगर तुझे नुकसान आ जाए तो खुद उठा के फिर अगले सालों में, लेकिन इस साल पार्टनर की इनकम में से वो लॉस माइनस करे, तो ना 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 ना, इसकी इजाजत नहीं है। लॉस ऑफ एओपी shall be set off against income of AOP, obviously in future। ये जो येलो और ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया, मेन बात तो यही है ना, लॉस ऑफ एओपी shall be set off against the income of AOP in, ये बात समझ आई बॉल पॉइंट मुंह में डाल के, ठीक है। लॉस ऑफ एओपी shall be set off against the income of AOP। एक एहतियात ये हो गई, एओपी अपना लॉस खुद बर्दाश्त करे। दूसरी एहतियात, पार्टनर की इनकम में से माइनस नहीं करना। एओपी कैनॉट सेट ऑफ द लॉस ऑफ अ पार्टनर कैनॉट सेट ऑफ लॉस ऑफ एओपी अगेंस्ट हिज इनकम। तो पहली लाइन के साथ लिखें, एओपी अपना लॉस अगले सालों के प्रॉफिट में से खुद माइनस करे। एओपी अपना लॉस अगले सालों के प्रॉफिट में से खुद माइनस करे। अब नीचे वाली लाइन लिखें, हाँ हाँ लिख के वो एक साइन ऑफ जो बनाते होते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, ये जो इस तरह का, हाँ पार्टनर एओपी का लॉस माइनस नहीं करेगा। इसको इसी तरह जोर से लिखिएगा जैसे मैंने बोला।
पार्टनर एओपी का लॉस माइनस नहीं करेगा। हाँ, पार्टनर एओपी का लॉस माइनस नहीं करेगा। ओके, पढ़ें जी। मिसकेलेनियस प्रोविजंस, बोलें मिसकेलेनियस प्रोविजंस relating to tax credits and partners of AOP। टैक्स क्रेडिट्स और पार्टनर्स ऑफ AOP के लिए मिसक्लेनियस प्रोविजंस। सीए कर लिया, अभी तक इनको ये नहीं पता चला मिसक्लेनियस होता है या मिसक्लेनियस होता है। भाई सीए करके बहुत से हजरात ऐसे भी हमें मिले जिनको नमाज जनाजा भी नहीं आती और जिनको ये भी नहीं पता कि नमाज जनाजा में जब भी अल्लाह अकबर इमाम ने करना है वरना उनकी नमाज जनाजा नहीं होगी। और भी बहुत से मसाइल सीएस को नहीं आते, तो ये एक कोई मसला नहीं है मिसलेनियस वाला। कई सीएस हमें ऐसे मिले जिनकी सूरह फातिहा अभी तक गलत है, 40-40 साल हो गए उनको नमाजें पढ़ते हुए, तो और बड़े मसले हैं। ओके, कुरान सही करने की फिक्र ही नहीं कि अल्लाह के सामने कैसे जा रहे हैं। ऐसी गलती करना जिससे मतलब बदल जाए, उससे तो वैसे ही नमाज टूट जाती है। अब कई सालों से नमाज पढ़ा होता है, हदीस में आता है एक भी नमाज कबूल नहीं होती। इधर भी हो रही है कॉलेज में तजवीद की क्लासें, लेकिन फिक्र ही नहीं। मेरा जो तजर्बा है 60-70% बच्चे जो होते हैं सीए वाले, उनकी नहीं तजवीज़ सही होती है। कुछ घरों में होगी तरतीब, लेकिन बहुत से घरों में नहीं है ऐसी। अच्छा जी, सेक्शन 65। अब मोहतरम, वेयर द पर्सन इंटाइटल टू, मिसक्लेनियस से हम बोलेंगे वेयर अ पर्सन इंटाइटल टू, स्पेलिंग याद करने के लिए, वेयर अ पर्सन इंटाइटल टू टैक्स क्रेडिट इज अ पार्टनर ऑफ एन, जहां कोई बंदा पार्टनर है एओपी का, तो फॉलोइंग रूल्स शैल अप्लाई, फॉलोइंग रूल्स लगेंगे। अच्छा, आपको शायद याद हो कंपोनेंट ए कल क्या लिया था, ज्यादा वाला टैक्स लिया था या ज्यादा वाला टैक्स लिया था या कम वाला टैक्स? ठीक है। अच्छा, हमने तो ज्यादा वाला टैक्स लिया था ना, और इनकम भी ज्यादा वाली, तो ए ज्यादा वाला और बी भी ज्यादा वाला। कंपोनेंट ए इन सेक्शन 61 to 63 इज द टैक्स ऑफ इंडिविजुअल अगर एग्जेम्प्ट अमाउंट, वो कौन सा टैक्स है? अगर थोड़ी देर के लिए मैं एज्यूम कर लूं कि एग्जेम्प्ट अमाउंट चार्जेबल है, तो फिर कौन सा वाला टैक्स आएगा? ज्यादा वाला टैक्स। एंड बी इज द टैक्सेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल फॉर द ईयर, एज्यूम एग्जेम्प्ट अमाउंट वर। ये एग्जेम्प्ट अमाउंट कौन सी है जिसको बाबा 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 चार्जेबल कहा जा रहा है? बाबा बाबा बार 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 480,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर ए। अगर मैं पार्टनर ए की बात करूं तो ये एग्जेम्प्ट अमाउंट कौन सी है? 480। थोड़ी देर के लिए इसको एग्जेम्प्ट अमाउंट को एज्यूम कर लो, ये क्या है? 480 चार्जेबल। थोड़ी देर के लिए एग्जेम्प्ट अमाउंट को क्या एज्यूम कर लो? अब सी के बारे में लॉ मेकर खामोश है, तो लॉ मेकर की खामोशी की वजह से लोगों ने थोड़े से टेंटिव हो जाए हाइब्रिड में। लॉ मेकर की खामोशी की वजह से लोगों में फिरके बने हुए हैं। तो एक फिरका ये कहता है कि सी ये वाला ले लो,
एक्चुअल टैक्सेबल इनकम, एक कहता है नहीं ज़्यादा वाली ले लो। बहरहाल आई कैप इसी को ले रहा है, ज़्यादा लोगों की यही राय है कि सी इसको ले लो। सी में जो लोअर ऑफ निकालना है ना, असल में 30% किस पे लगाना है उसके बारे में लॉ खामोश है। तो मोर और लेस ये ए वही वाली अंग्रेजी बन गई। एज्यूम अमाउंट ड्राइव फ्रॉम एओपी इज चार्जेबल इफ एग्जेम्प्ट अमाउंट वर चार्जेबल। उधर डिराइव फ्रॉम एओपी लिखा था, इधर एग्जेम्प्ट अमाउंट लिखा है। वो 320 मैंने पार्टनर बी की अमाउंट लिखी थी मादरत, 480 मैंने पार्टनर ए की अमाउंट लिखी है, अमाउंट तो वही है ना। मुझे लग रहा है आज भी इन्होंने एक सफ़ा पढ़ाना है, उस पर भी आधे सफ़े पे लिखा हुआ है, आज भी कुछ याद करने को नहीं आना। आज मैंने फारग कर देना है बिजनेस के चैप्टर को। अच्छा जी, यार तू तो साइड पे हट, हर वक्त ची ची पा पा। अच्छा मोहतरम, अब ऐसा है कि मिस्टर ए का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका टैक्स था 7 और टैक्स क्रेडिट था 10, तो जवाब आया 0। अब हमने पढ़ा था ये जो 3 का टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं हो सका, ये ना रिफंड होगा, ना अगले साल माइनस होगा, ना पिछले साल माइनस होगा। फर्ज करें ये 2024 है, लेकिन एक बहुत बड़ा बेनिफिट अवेलेबल है कि एओपी का जो टैक्स बने, मिसाल के तौर पे 75 एओपी का टैक्स बनता है, इसमें से टैक्स क्रेडिट ऑफ पार्टनर माइनस कर ले। जो पार्टनर माइनस नहीं कर सका वो कितना है? 3। तो ये ऑफर करेगा पार्टनर का एओपी माइनस कर ले। पार्टनर ऑफर करेगा कि मैं 3 का डिस्काउंट नहीं ले सका, एओपी लॉ मेकर से पूछेगी मैं ले लूं, लॉ मेकर कहेगा ले लो ये डिस्काउंट, तो अब ये टैक्स कितना पे करेगी? लेकिन ऑब्वियसली पार्टनर और एओपी शुड एग्री इन राइटिंग। तो पार्टनर और एओपी बैठ के एक साइन करें और एग्रीमेंट बनाएं और उस पर साइन करें कि मैं तुम्हें अपना 3 का डिस्काउंट दे रहा हूं। एओपी कही मैं पसंद करती हूं। जब एक्सेप्टेंस हो जाए दोनों तरफ से तो फिर एओपी को खुली इजाज़त है पार्टनर का टैक्स रेट माइनस कर ले। बहुत बड़ा बेनिफिट लॉ मेकर ने दे दिया, लोग भी हैरान हैं आज तक इस पे। नोट कर लें भाई, नहीं तो मैं आ जाता हूं फिर नोट करवाऊंगा साथ है। लेकिन ऐसे गर्दन यहाँ पे हाथ रखें, यहाँ पे जरा ठंडा वाला हाथ, फ्रेश अप हो जाए जरा। चलें जी, जी 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 माय डियर। सिर्फ उसी वाला जी, वेयर द पर्सन इज अ पार्टनर ऑफ एन एओपी, एनी एक्सेस क्रेडिट। वैसे टोटल टैक्स क्रेडिट कितना है? 10। कितना माइनस हो गया? 7। कितना एक्सेस है?
3, तो हमारी मिसाल में तो ये कम से कम 3 है। एनी एक्सेस क्रेडिट ₹3 फॉर अ टैक्स ईयर मे बी फॉर अ टैक्स ईयर को ब्रैकेट में ले लेना। एनी एक्सेस क्रेडिट मे बी क्लेम्ड बाय पार्ट एओपी। इसका टैक्स क्रेडिट ये ले सकता है, लेकिन अगर इसका माइनस नहीं हो सका तो ये नहीं ले सकता, वाइस वर्सा नहीं है। फॉर अवेलिंग दिस बेनिफिट द पार्टनर एंड एओपी शुड एग्री इन द पार्टनर एंड शुड एग्री इन राइटिंग एंड एग्रीमेंट मस्ट बी फर्निश्ड विद द एओपीज। जब एओपी अपनी रिटर्न जमा कराने जाए, साथ एग्रीमेंट ले कि मैंने किसी का डिस्काउंट लेना पसंद किया, उसने डिस्काउंट दे दिया था, मैंने ले लिया, तो बस ठीक है। टैक्स क्रेडिट अलाउड फ्रॉम सेक्शन 61 टू 63, आखिरी रो में बातें करते हुए दरवाजे के पास। टैक्स क्रेडिट अलाउड फ्रॉम सेक्शन 61 टू 63 shall not be refunded carried forward to subsequent year or carried back to preceding year। ये तो एक जनरल रूल था ना भाई, ये तो जनरल रूल बताया हुआ था ना कि ये 3 कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ऊपर उसकी एक्सेप्शन है जनरल रूल। ये जनरल रूल रिपीट हो रहा है। असल में ना कई दफा पेपर में सवाल आ सकते हैं, मिसलेनियस प्रोविजन बताएं टैक्स क्रेडिट की क्या है, तो फिर हमें ये लिख के आनी पड़ेंगी। तो इसलिए ये वो जो पुरानी बात हमने पढ़ी हुई थी ना, ये बात मैंने डाली हुई थी चैप्टर 6 में, वहां भी जाके देखें, सेक्शन 65 का पॉइंट नंबर 5 होगा, ये वहां आपको पढ़ाया था। तो ये मैंने वो पुरानी वाली बात वापस डाल दी है इधर, ये ऐसे ही आपके समझने के लिए दोबारा डाली है ताकि यहाँ पे सेक्शन पूरा हो जाए। ये देखें सेक्शन 65 का ये वाली लाइन कॉपी पेस्ट की है जो चैप्टर 6 में पढ़ी थी। चलें यहां बात को क्लोज करके समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इस लाइन का, जल्दी बताएं। ऑब्जेक्टिव क्या है इस लाइन का कि जनरल रूल ये है कि ये ₹3 डेड हो जाएगा। टैक्स क्रेडिट अलाउड शेल नॉट बी रिफंडेड कैरिड फॉरवर्ड सब्सिक्वेंट, ये जनरल रूल ये है। लेकिन ये क्या अवेलेबल है, रिलैक्सेशन अवेलेबल है, एक्सेप्शन अवेलेबल है, रिलैक्सेशन अवेलेबल है। जनरल रूल नीचे वाला है, लिख लें, और ऊपर रिलैक्सेशन है। हाँ जी, किसकी? हाँ 3 की टैक्स ट्रीटमेंट बता दें जी, कोई हाथ खड़ा करके। भाई कह रहे हैं 3 का क्या करना है, जरा सारे कोई एक हाथ खड़ा करके बंदा बता दे। हाँ आप बता दो, ये भाई बता रहे हैं। यूपी माइनस करेगा नहीं ना, तो पूरी बात करें क्या हुआ था उसके बाद ऐसा करना पड़ा। मैं खा लूंगा, कहाँ से आया था, किसने दिया था, कौन नहीं खा रहा था तो मैं खाने को तैयार हो गया। हाँ चलो अब बाबा बताओ। मिस्टर ए का टैक्स रेट पूरा माइनस नहीं हो सका, आगे बोलो। एओपी एग्री कर ले और एओपी अपने टैक्स में से माइनस कर ले। डिविजिबल इनकम में तो टैक्स आता ही नहीं, डिविजिबल इनकम का टैक्स से कोई ताल्लुक ही नहीं हो। एक सबर ना, मुझे जवाब तो देने दो। डिविजिबल इनकम का तो टैक्स से कोई ताल्लुक ही नहीं। डिविजिबल इनकम में तो ये 8 लाख जाता है, उसमें 30,000 जाता ही नहीं। तो डिविजिबल इनकम से जब इसका ताल्लुक नहीं है तो सबर ना, 1 मिनट मुझे बात तो पूरी करने दें। तो अब अगर 9450 ये बन रहा है और इधर 9451 होता तो फिर इधर 1 नेगेटिव आ जाता। ये जो 1 नेगेटिव है ये आप 30,000 में से माइनस करते तो 29,999 फिर एओपी टैक्स दे के आ जाती। डिविजिबल इनकम में तो टैक्सेस आते ही नहीं जी। अब आप पूछें, कौन पूछ रहा था? हाँ अगर एओपी का ही, हाँ नहीं, ओके। कर लेगी वो, कोई मसला नहीं, अगर डिफरेंस भी है हल्का फुल्का चल जाएगा। चैप्टर 18
साथ वाला कोई ऐसी अजीब हरकत करे ना जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो, तो उसको फौरन कह दिया करें लाले बंदा जुत्ती ते पाले, दोबारा पहन ले। उसमें क्या उसको मारना यार, ये तो बुनियाद। लेकिन उसको थोड़ा सा जरा कका करें यार, प्लीज लेट मी पढ़ यार, मैं जरूर पढ़ने आया हूं। पेज 441। शायद हमारे 44 तक सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, आज हम 45th कर लेते हैं। पेज 441 पे 45th क्वेश्चन ट्राई करें, ताकि बस ये चैप्टर तो खत्म होना। चैप्टर 18 को आज हम अल्लाह हाफिज कहें। क्वेश्चन 45, मीठी बेकर्स is a bakery. Oh, that's nice. Owned by Mariam Baji and her two brothers, Ehsan Baja and Ghulam Baja, who share profits in the ratio of 60:20:20. 6/10, 2/10, 2/10 या 60%, 20%, 20%, जो मर्जी समझ लें। SB has 3 outlets located in Karachi and it also owns agricultural land. तो एग्रीकल्चर लैंड का किराए पे देना किस हेड में जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम में, और ये क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा, ये आपको बताया हुआ है। एंड इट ऑल्सो ओन्स एग्रीकल्चरल लैंड, इट इज रेंटेड आउट टू अ चिकन फार्मर। तो एक चिकन फार्मर को एग्रीकल्चर लैंड इन्होंने किराए पे दी हुई है। तो SB इज रजिस्टर्ड विद सेल्स टैक्स अथॉरिटीज एज अ बड़ा रिटेलर। टायर 1 बड़े रिटेलर होते हैं, अदर देन टायर 1 छोटे रिटेलर होते हैं। और रिटेलर हो जो भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है बड़ा छोटा, हमने कोई इसकी टैक्सेशन में डिफरेंस तो नहीं पड़ा था। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज नॉट बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ SB, हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, खर्चे वगैरह, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट सेल यानी सेल ही, नेट सेल शायद इसलिए लिखा हो कि सेल रिटर्न भी कोई हुई हो। सेल इंक्लूड रेंट रिसीव्ड फ्रॉम चिकन फार्मर, ऑब्वियसली इसको तो फिर निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट से शुरू करते हैं। 77 वर्किंग नंबर 1। रेंटल इनकम माइनस कर दें, बिकॉज रेंटल इनकम तो हमारी बिजनेस इनकम नहीं है, ये तो एग्जाम्प्ट है ना। तो सेल में रेंटल इनकम पड़ी है सेल में रेंटल इनकम पड़ी है, महीने का किराया ले रहे हैं उससे 0.5, तो साल कम कितना बनेगा? 0.5 इंटू 12 जी 6। कर ले नोट। ये फिगर्स को ना, फिगर्स को अगर आपका ये सफा है तो अंग्रेजी यहां लिखें, तो फिगर्स को यहां ना लिखा करें, यहां ना लिखा करें, फिगर्स को यहां लिखा करें, यहां करके, यहां बिल्कुल यहां। ये जरा ड्रैग करके फिगर को लेके जाएं साथ वाले की उधर, फिर इसको आदत पड़ेगी। हो गया जी। सेल इंक्लूड रेंट फ्रॉम चिकन फार्मर। अच्छा, रेंट मुझे लग रहा है कि किराए पैसों में भी ले रहा है और रेंट में हम चीजें भी ले रहे हैं, यानी रेंट इन कैश भी ले रहे हैं और रेंट इन काइंड भी ले रहे हैं। 120 पेटीज, यार उर्दू में लिख देते तुम ब्रैकेट में, जी बोंगी मारी है, हम डिक्शनरी खोल के बैठे हुए हैं कल के। 120 पेटीज ऑफ एग्स, एग्स की 120 पेटियां ली हैं। इंग्लिश का तो लफ्ज नहीं है ना माय डियर, ये पता नहीं, आई डोंट नो, कल को कोई आके कहे कि इंग्लिश का लफ्ज है। पेटीज, पेटीज a word that generate to light in the English. Peties may also refer to a shirt which is a garment. बहरहाल आई के मेरे ने ख्याल ऐसा अजीब लफ्ज इसको यूज करना चाहिए था।
तो सप्लाई ऑफ 120 पेटियां ऑफ अंडे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी वहां से वो प्रोड्यूस निकल रही है ना, तो ये एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो है वो उग तो नहीं रहे माय डियर, ये फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है। सप्लाई ऑफ 120 पेटीज ऑफ एग्स एवरी मंथ, ईच पेटी होल्ड्स अ मार्केट वैल्यू ऑफ 7200, तो हर पेटी की मार्केट वैल्यू 7200 है। एसबी ने इनको प्रोडक्शन ऑफ वेरियस बेकरी, ये तो अलग बात है ना, ये तो अगली बात है। फिर फिलहाल मुझे बताएं, ये जो मुझे पेटियां मिली हैं फी सबीलिल्लाह मिली हैं या मैंने अपनी जमीन किराए पे दी हुई है? तो मुझे कुछ पैसे दे रहा है वो, कुछ पेटियां दे रहा है, तो इससे मेरा मकसद पूरा हो जाता है कि जो मैंने जमीन किराए पे दी हुई है उसके पैसे मिल गए। तो मेरे ख्याल से यहां तक रुक के 120 को आप मल्टीप्लाई करें किससे? 7200 से, लेकिन 12 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो बहुत से बच्चों ने नहीं किया। कितने लोगों ने किया था 12 से मल्टीप्लाई? कितने लोग 12 से मल्टीप्लाई करना भूल गए? भूल गए। हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा करें, 12 से मल्टीप्लाई करना भूल गए? भूल गए। साथ वाले को समझाएं, बेटा ऐसा ना किया करो, खुदा के लिए मेरे साथ बैठे हो, तुम्हें तो ये बात जेबा नहीं देती। बाहर निकल के साथ वाला बताता है एवरी मंथ लिखा हुआ था, ऑब्वियसली अंदर बैठ के तो बताना नहीं होता ना उसने। 120 ज़रब 12, क्या जवाब आया? 10.37। मैं चपेट मार रहा हूं, वो कह रहे थप्पड़ खाने। 120 ज़रब 12 144, तो 1440 पेटियां साल के अंदर हमें मिली हैं, तो हम पेटियां पेटियां हो गए हैं। इंटो एक पेटी कितने की? 7200 की। 10.368 10.37। ऐसी फिगर अगर कभी पेपर में आ जाए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि शायद मेरी कैलकुलेशन गलत है, हालांकि क्या फर्क पड़ता है, पॉइंट्स में जा सकती है। तो 10.37 ये मैंने क्यों माइनस किया है? क्योंकि ये मेरी बिजनेस इनकम नहीं है, ये मेरी बिजनेस इनकम नहीं है। अब इसको रिक्लासिफाई कर लेते हैं, रेड मार्कर से आर डाल के, रेड मार्कर अब लेन टाइम जाया करें, न्यूमेरिकल के फेस पर आकर इनकम फ्रॉम बिजनेस और एग्रीकल्चरल इनकम 6 + 10.37 दैट इज 16 ऑब्वियसली इसको मैं टोटल करके एंड पे माइनस भी कर दूंगा क्योंकि ये मेरी माफ है इनकम, तो मैंने ऐड बरकत के लिए किया है, इंशाल्लाह इसको लेस भी कर देंगे। जैसे होता नहीं, ये एग्जाम्प्ट इनकम को उसी तरह करते हैं ना, जिस तरह आप अब्बू को छोड़ने जाएं डेबो पे, तो आप थोड़ी देर अब्बू के साथ बैठते हैं और फिर दोबारा बाहर निकल आते हैं। अभी आपको बिठा दिए मैंने अब्बू के साथ, क्योंकि अब आपने जाना नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह भी माइनस भी कर देंगे। जी हाँ बोलो क्या? हाँ असल में ये है ही एग्जाम्प्ट, ठीक है। यार ये 500 रुपये और बनते हैं आज इसके। भाई इसने बहुत कमाल सवाल पूछा है। आप पहली दफा टेक्स्ट पढ़े हो? ठीक है, क्लास के बाद आना, 500 रुपये आपको नाम मिलेंगे। ऑब्वियसली जो इसने पूछा है वो मैंने फिर कभी डिस्कस करना था क्लास में, तो आज मैं डिस्कस नहीं करा क्योंकि ये एक आगे का कॉन्सेप्ट है। ओके नेक्स्ट इज, सवाल में रिपीट नहीं करा, अभी सबको कंफ्यूजन होगी फिर कि वो, अच्छा फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद एसबी कंज्यूम, अभी कोई कहेगा कंज्यूम का मतलब इस्तेमाल करना होता है ना, तो मुझे भी पैसे दें। एसबी कंज्यूम दीज एग्स, एसबी ने ये अंडे इस्तेमाल कर लिए हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस बेकरी आइटम्स, वेरियस बेकरी आइटम्स प्रोड्यूस करने में ये अंडे इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन इनको कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं डाला। बता दें कॉस्ट ऑफ सेल में जाने चाहिए? जी बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ सेल में जानी चाहिए। और किस में जाने? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल में ही जाती है, और वो कहां जाती है? तो क्या ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाने चाहिए? जाने चाहिए, तो डाल दें, कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दें, कोई मसला नहीं।
और असल में अगर आप अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करें तो अकाउंटिंग एंट्रीज इस तरह की ये बनेगी। कॉस्ट ऑफ सेल में उसने डाला नहीं, हम डाल देते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज इस तरह की बनेगी, जब ये अंडे मेरे पास आए होंगे तो एग्स इन्वेंट्री डेबिट और P&L क्रेडिट। अकाउंटिंग एंट्रीज की बात कर रहा हूं मैं डियर, खुशी हुई होगी ना, मुझे तो मिले हैं, रेंटल इनकम मिली है ना। चलो P&L नहीं करना, P&L की जगह लिख लो आप रेंटल इनकम। अकाउंटिंग की क्लास की बात कर रहा हूं ना माय डियर। तो ये एग डेबिट रेंटल इनकम, तो इट इज रेंटल इनकम, ये मैंने डाल दी न्यूमेरिकल में। तो जब अंडे आने पर इसको मैंने रेंटल इनकम में डाला होगा। और क्या मैं 1440 पेटियां मरियम और उसके 2 भाई बैठ जाएं तो क्या पूरे साल में 1440 पेटियों के अंडे खा सकते हैं? नहीं, कंज्यूम कर रहे हैं। ये कंज्यूम खा के कर रहे हैं या अपनी बेकरी में इस्तेमाल करके? तो फिर जब बेकरी में इस्तेमाल किया होगा तो इन्वेंट्री क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल। तो कहते हैं मैंने कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं डाला तो डाल देते हैं, कोई मसला नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल खर्चा टाइप चीज है या इनकम टाइप चीज है? अब अगर कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं डला हुआ तो डालने से प्रॉफिट और ज्यादा, मेरे ख्याल से तो खर्चे रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम होते हैं। तो ऐड वाली साइड पे लिखूं या लेस वाली साइड पे लिखूं? तो ये जो सप्लाई है, सप्लाई वो कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? वो कर रहे हैं हमें सप्लाई। तो सप्लाई की एंट्री क्या है? एक्स डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। और कंज्यूम की एंट्री क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एक्स क्रेडिट। तो हमने कहा नहीं डाला तो डाल दें कॉस्ट ऑफ सेल में। अंडे आए, अब तो अंडे बिस्किटों के अंदर नजर आ रहे हैं। वो फिर ऑब्वियसली आपको पता है, अगर मैं आपको बताऊं बेकरीज में देखा नहीं जाता कौन से साफ अंडे हैं कौन से नहीं। बेकरी आइटम्स, इसलिए कुछ दुनिया के ऐसे मुल्क हैं जहां सुना है बेकरीज हैं ही नहीं। बेकरी आइटम सबसे खतरनाक चीज है। अच्छा जी, देखें साथ वाले ने अपने खा के क्या अच्छा मोहतरम, आप मुझे ये बताएं कि बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल, ये कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल नहीं है, तो क्या करें? कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दें। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल 10.37, ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल होगी ना। ऐसे हाथ रख के साथ वाले को कहें जरा, आज यही मेरी कॉस्ट ऑफ सेल होगी ना। हाइब्रिड प्लीज ऐसे हाथ रख के साथ वाले को कहें यही मेरी कॉस्ट ऑफ सेल होगी ना। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ा हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ा हुआ है। अब ये ना कहने दीजिएगा चारों पॉइंट्स के, जब पड़ा रहने दें, अगला पढ़े। ऑपरेटिंग खर्चों में पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दें। कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल हमने खरीदा है। कैमरा उधर करो, कैमरा वापस ले आया जाए। कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल 24 मिलियन का खरीदा है जिस पर टैक्स नहीं काटा। वैसे टोटल परचेजेस हमारी 200 हैं, बाकी जाहिर बात है ओपनिंग स्टॉक भी होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया होगा, जिस वजह से 350 की फिगर नजर आ रही है। कहते हैं परचेजेस मेरी 200 हैं, 24 मिलियन के ऊपर जो है वो मैंने टैक्स नहीं काटा। अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, अल्लाह उसे पढ़ने की तौफीक दे, अल्लाह उसे आप जैसा बना दे। वो कह रहे नहीं ना, मेरे जैसा ना बने, अच्छा बंदा बन जाए। अच्छा नहीं, आप ये पेज 137 पे हमने एक वर्किंग सीखी थी, तो इसी वर्किंग को मैं जरा यूज कर रहा हूं। वर्किंग 2 आज के सवाल की, परचेजेस डिसअलाउड। व्हाट इज द परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड? सवाल में दी हुई है 24 एंड द 20% ऑफ टोटल परचेज 40। व्हाट इज लोअर? So 24 इज डिसअलाउड। डिसअलाउड का क्या मतलब है? माइनस करने की इजाजत, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल में पड़े होने की वजह से माइनस हो तो इसे क्या कर दें?
तो ये परचेज डिसअलाउड निकालने का तरीका जरा ट्राई करें, ये वर्किंग कर लें, पूरी वर्किंग करें ना आप लोग तो पेज 137 खोल के इस तरह नहीं करेंगे, पूरी वर्किंग करें। लिख लें बेशक, पेज 137 पे ये तरीका पड़ा था। जल्दी से हाइब्रिड में होके आए, मीनवाइल हम जरा सीए कर लें। ओके, उठने भी नहीं देते अब तो क्लास से। जिंदगी बेबंदगी, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। अच्छा जी, परचेज ऑफ मिल्क पाउडर worth rupees 10 million, of which 10% is delivered to the homes of 3 partners for their personal use। मिल्क पाउडर कुछ लोगों को आदत होती है वैसे ही चम्मच से खाने की, तो पार्टनर्स के घर में मिल्क पाउडर जा रहा है, तो ये बिजनेस का खर्चा है या ये पर्सनल खर्चा है? कॉस्ट ऑफ सेल में तो 10 पड़ा है, तो हमें 10 पे एतराज है या 10 के 10 पे? 10 के 10 पे एतराज है। तो ये अच्छा सॉरी, परचेज तो डिसअलाउ करा दे माय बबलू। दूध पाउडर 10 का 10 क्या है? 1। नॉट अलाउड कितना है? वो एक पॉइंट नहीं पड़ा सेक्शन 21 में, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सनल नेचर, या 21 का जे भी लग सकता है कि ये पार्टनर्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं चीजें, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। पार्टनर की सैलरीज हैं, अच्छा भाइयों के नाम भी बता दिए, अच्छा वो ऊपर भी बताए हुए थे। तो पार्टनर्स की सैलरीज हैं, तो 21 का जे कल पढ़ा था ना हमने, कितना कितना? 8.2। वो तो बाहर निकल के पता चला ये पर मंथ थी, नहीं कोई नहीं लिखा हुआ पर मंथ, वरना क्योंकि क्लास के बाद किसी ने आगे कहना कि जहां दिल चाहता है 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जहां दिल चाहता है 12 से मल्टीप्लाई नहीं करते, आपने लुट मचाई हुई है। तो ये जो लुट मचाई प्रोग्राम है मेरे भाई, ये ऐसा नहीं है, खुदा के लिए ऐसा ना करें। हम ये इस तरह की एवरी मंथ मंथली इस तरह की पेमेंट्स पढ़ के लुट मचाते हैं, तो यहां हमें कोई शौक नहीं लुट मचाने का, क्योंकि लुट तो है ही मचाने के लिए। परचेज ऑफ न्यू बेकरी प्लांट वर्थ रुपीज 15 मिलियन। खर्चों में प्लांट की कॉस्ट डाल दी, कितना है? इसको उल्टाकर डेप्रिसिएशन चपेड़, इनिशियल अलाउंस भी माइनस करें इसका, 15 इंटू 25%, 3.75, और इसकी टैक्स डेप्रिसिएशन भी माइनस करें, कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%, 1.69। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट उल्टा के उसका इनिशियल अलाउंस और टैक्स डिप्रेशन माइनस कर दें। प्लांट माइनस होना चाहिए या प्लांट की डिप्रिसिएशन माइनस होनी चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड परचेज, क्या मतलब है इस लाइन का? कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड परचेज, कॉस्ट ऑफ सेल में परचेज पड़ी है, नहीं पड़ी होनी चाहिए थी।
परचेज पड़ी होनी चाहिए या उसकी डिप्रिसिएशन पड़ी होनी चाहिए? डिप्रिसिएशन। चलें जी, खर्चों में पड़ा है, बोले खर्चों में पड़ी है, क्या पड़ी है? पॉइंट ऑफ सेल मशीन। हम टायर 1 रिटेलर हैं और हमने पॉइंट ऑफ सेल मशीन खरीदी है। लेट अस कॉमन चैप्टर 6। टायर 1 रिटेलर अगर पॉइंट ऑफ सेल मशीन खरीद ले, तो अगर बड़ा रिटेलर पॉइंट ऑफ सेल मशीन खरीद ले तो उसे टैक्स क्रेडिट मिलता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन खरीदने का, जितने की मशीन खरीदी या 1.5 लाख पर मशीन, विच एवर इज लोअर। तो इसलिए ऊपर टायर 1 रिटेलर लिखा हुआ था। ना भी लिखा होता तो हम एज्यूम कर लेते कि ये टायर 1 रिटेलर है। जी माय डियर, DONE Purchase of point of sale machine which was installed on July 2022 in all outlets integrated with computer system for real time reporting of sales. Is it a business का खर्चा या परचेज कॉस्ट? ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको तो बिजनेस के खर्चे में ना डालें जी। ये कॉस्ट किसकी थी? प्लांट की। और ये कॉस्ट कितनी? 0.4। इसकी जगह इसका इनिशियल अलाउंस और टैक्स डिप्रिसिएशन माइनस करें। इसकी जगह इसका इनिशियल अलाउंस और टैक्स डिप्रिसिएशन माइनस करें। नो डिप्रिसिएशन बिकॉज टैक्स क्रेडिट इसका मिलता है। टैक्स क्रेडिट इज अलाउड। लेकिन ये बात मेरे ख्याल से गलत है। ICAP ने ऐसा लिखा हुआ है, बहुत से लोगों की राय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, डिप्रिसिएशन बिल्कुल मिलनी चाहिए, ये भी मशीन है। हाँ, एक और बेनिफिट भी देना चाहिए, टैक्स क्रेडिट तो देना ही देना है। तो मेरे ख्याल से शायद ये ICAP का सोल्यूशन गलत है, बट हम ICAP के मुताबिक ही चलेंगे। ICAP कहता है कि इसकी डिडक्शन माइनस नहीं करनी, लेकिन लोग कहते हैं कि डिडक्शन इसकी माइनस कर दें, क्योंकि ICAP कहता है इनिशियल अलाउंस देना है, सॉरी वो टैक्स क्रेडिट देना है आपने। मजबूरन ICAP ने किया हुआ था, इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना मैं करता डिडक्शन माइनस। जी बोलें, कौन बोल रहा था? हाँ जी, वो तो सवाल बताएगा ना, वो तो रेयर सर्कमस्टेंस में होगा। अच्छा, तो इसका फेस पे टैक्स क्रेडिट माइनस करेंगे, तो इसको थोड़ा सा लिख जाएं यहाँ पे टैक्स क्रेडिट, ताकि एंड पे आपको याद रहे कि कुछ फेस पे भी करना है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें नहीं लिखेंगे तो फिर पेपर में भूलने का चांस है, और पेपर में भूल के फिर घर में याद आए तो फिर बंदा जो है वो थ्रू ही बहा सकता है। देयर इज नो नीड टू क्राई ओवर गिरा हुआ दूध, अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गईं। पेमेंट ऑफ 5.5 मिलियन। ओ, खर्चों में पेमेंट पड़ी है। पेड टू एन IT कंपनी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज अ सॉफ्टवेयर टाइप चीज, तो ये इंटेंजिबल है। लाइफ इसकी 5 साल है और ये यूज होना अगले साल शुरू होगा। अच्छा, एक बार याद रखिएगा, टैक्स वाले तभी अमोर्टाइज करने देते हैं जब चीज यूज हो। अकाउंटिंग वाले तब अमोर्टाइज करते हैं या डेप्रिशिएट करते हैं जब अवेलेबल फॉर यूज हो, लेकिन टैक्स वाले तब करते हैं जब। तो फिलहाल ऐसा करें कि इसकी कॉस्ट उल्टा दें। सर आपको कैसे पता चला कॉस्ट पड़ी है? भाई ये 3 लाइनें लिखी हुई हैं, खर्चे इंक्लूड परचेज प्राइस, खर्चे इंक्लूड परचेज प्राइस, खर्चे इंक्लूड पेमेंट। पेमेंट और परचेज का एक ही मतलब होता है। ये 3 लाइनें हाईलाइट करके मुझे पता चला कि खर्चों में फिक्स्ड एसेट की पेमेंट या परचेज नहीं पड़ी होनी चाहिए। पेमेंट का लफ्ज इंपॉर्टेंट था और परचेज का लफ्ज इंपॉर्टेंट था, तो NOV कर दो। 5.5 मिलियन कॉस्ट ऑफ नरमवेयर सॉफ्टवेयर 5.5। टैक्स अमोर्टाइजेशन अलाउड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। आप लोगों ने ये रीजनिंग नहीं लिखनी होती, तो मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूं। टैक्स अमोर्टाइजेशन इसकी अगले साल माइनस करने की इजाजत है।
आ जाए हमारे साल खत्म होने से 5 महीने पहले, कितने महीने पहले? 5 महीने पहले मरियम ने कंट्रीब्यूट कर दी है अपनी जाती गाड़ी टू द बिजनेस, अपनी जाती वैन। लोग समझाते रहे अपनी जात के लिए आप जो है वो गाड़ी ले लें, नहीं मैं वैन लूंगी, मर्जी तेरी। मरियम कंट्रीब्यूटेड जाती वैन टू बिजनेस, उसने जाती वैन बिजनेस को दे दी है जो उसने परचेज की थी 6 मिलियन की पिछले साल। जाहिर बात है जाती वैन है तो उसको डेप्रिशिएट तो नहीं करी होगी, वो तो बिजनेस एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं। तो बस 6 मिलियन की खरीद ली थी उसने, लेकिन जब बिजनेस को उसने ट्रांसफर की तो उसकी मार्केट वैल्यू थी 9 मिलियन। तो ऑब्वियसली हमने एक लाइन पढ़ी हुई है, कंट्रीब्यूटेड पर्सनल वैन टू बिजनेस। The things are too easy. I don't know ICAP is why testing so much. और अजीब बात पता है क्या है, मुझे तो हंसी आती है कभी कभी कि ICAP कहते हैं ये न्यूमेरिकल आधा सॉल्व कराओ, आधा भी सही सॉल्व कराओगे तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा। इट्स रियली अजीब। वो बंदा पूछे कि तो थोड़ा कुछ पासिंग परसेंटेज बढ़ाओ, कुछ 70-80% पे लेके जाओ ताकि पता चले ना। तो अजीब अजीब नहीं है, यानी कि वो पूरे पेपर में से कहते हैं आधा आधा सही कर लो, हाइट ऑफ एनीथिंग। वेल मैं दिल में नहीं हंस रहा, मैं आपसे हकीकत शेयर कर रहा हूं। क्या ढूंढने जा रहे थे हम? तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता सेक्शन 76 क्या कहता है। सेक्शन 77 बेच रहे हैं ना चीज, चपेट मारे बंदा। सेक्शन 76 तो फिर ना बोला करो ना, फिर पंगे ना लिया करो। पेज 159 पे हमने पढ़ा था, इफ अ पर्सनल एसेट इज पुट टू बिजनेस यूज, इट्स कॉस्ट विल बी द फेयर वैल्यू ऑन द डेट इज पुट टू बिजनेस यूज। सो दैट्स व्हाई हाइब्रिड में बातें करते हुए इट्स कॉस्ट विल बी 9 मिलियन। नाउ द क्वेश्चन इज इट प्लाइंग फॉर हायर और नॉट? इसको बिठा के सवारियों को किराया लिया जाता है या नहीं? बस इसका जवाब देना है, यस और नो। जल्दी प्लीज प्लीज। इज इट प्लाइंग फॉर हायर? इसमें सवारियों को बिठा के उनसे किराया लिया जाता है? इफ इट इज नॉट प्लाइंग फॉर हायर देन व्हाट डज इट मीन? इसकी कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे 9 मिलियन या 7.5 मिलियन। अब ऑब्वियसली आपके साथ अगर 7.5 मिलियन पर रिस्ट्रिक्ट करने वाला बैठा हुआ है तो ही इज द रियल गाय इन द क्लास, जिसके साथ आप बैठे हैं तो ये आपकी खुशनसीबी है ना कि उसकी खुशनसीबी है। तो 7.5 अगर किसी ने किया था तो हाथ खड़े कर दें ताकि साथ वाला अप्रिशिएट कर दे इसको। लेकिन इसको उल्टाना नहीं है इसकी कॉस्ट को, क्योंकि आप लोगों ने कहीं खर्चों में नहीं डाला हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैंने वैन खरीद के उसको खर्चों में डाल दिया। सिर्फ इसकी टैक्स वालों की क्या माइनस करनी है? डेप्रिसिएशन। बाकी व्हीकल के ऊपर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता, तो अप्लाइंग फॉर हायर पे मिलता है जिससे सवारियां बिठा के किराया लिया जा रहा हो, लेकिन इस पे नहीं मिलता इनिशियल अलाउंस। तो 9 लिखते हैं क्योंकि घर जाके आपने कहना है 6 और 9 की एवरेज ली हुई थी सर ने, पता नहीं सर ने 6 और 9 की ना एवरेज ली हुई थी शायद, इसलिए 7.5 आया। नहीं माय डियर, 9 लेना था, 7.5 ले लें। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। जी बताएं। अच्छा अब नहीं किया पेपर में तो खुशी से जवाब तो दे देना। अब क्या हो गया? 1.13 टोटल करें। हाँ जी 108.6। 3-4 लोग इसकी गवाही दे दें 108.6 की, फिर आगे चलते हैं। ओके 108.6 कौन कौन है?
मरियम, एहसान एंड गुलाम। मरियम, एहसान एंड गुलाम, AOP, इनकम एंड टैक्स, तो लिखें जी मरियम, एहसान एंड गुलाम, AOP, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2023। वो नीचे लिखना था, मेरे पास जगह नहीं थी। तो जाहिर बात है ऊपर SV भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कोई मसला नहीं, SV बेसिकली लिखने ज्यादा बेहतर है। ओके, अच्छा जी, अब टोटल इनकम करें 124 लेस एग्रीकल्चरल इनकम, यहां पे लिखते हैं शक डैश एग्जेम्प्ट, फाइनल टैक्स रेजिम नहीं है, सेपरेट ब्लॉक नहीं है, कुछ नहीं है। आज आके आपको पता है होती बोर्ड खोले 108.6, वहीं आ गए हम टैक्सेबल इनकम। कोई जरा जाके सोल्यूशन से टैक्स बता दे, मेरे पास टाइम नहीं है इसका टैक्स निकालने का। 47.96, तो सरचार्ज भी आएगा क्योंकि डेट इज ग्रेटर देन 10 मिलियन। एड सरताज 47.96 इंटू 10%, अब आपने टैक्स क्रेडिट देना है पॉइंट ऑफ सेल मशीन का, लेस टैक्स क्रेडिट लोअर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, ये सबकी है, पर मशीन नहीं है। नंबर ऑफ मशीन्स भी पता नहीं दी हुई या नहीं दी हुई, नहीं दी हुई, नहीं दी हुई। अच्छा भाई, अब हाँ थोड़ा सा समझ लेने देना, सबको समझ लेने देना, सब जाहिर बात है कोई ना कोई मिस हो जाती है बात, पेपर में इंसान ही है। परचेज पॉइंट ऑफ सेल मशीन विच वर इंस्टॉल्ड इन ऑल आउटलेट्स, so how many outlets are there? 3 outlets, so that is 3. Oh, the ICAP can test so deep. I'm not so deep, but it is so what we can do. Oh, so deep testing, please hold my heart, I'm going to 150,000, ये 150,000 कहाँ से आए? चैप्टर 6 में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि 1-2 होने हैं क्लास में इस तरह वाले भी, उन्होंने जाके कहना है 1.5 लाख कितों आया है, चल 60,000। मुझे तो यहाँ से आगे समझ ही नहीं आई, जब 1.5 लाख ही मैं सोचता रहा। बोले वट एवर इट मे बी, पेपर में भी इसी तरह करके आइएगा, whatever it may be, whatever it may be, do it yourself. मेरी दूध की दुकान होती थी पहले, ऐसे क्यों देख रहे हो? जी बंदे हैं। पांच उंगलियां रख के साथ वाले के सर पे शफकत का हाथ रखें।
भाईजान पूछ रहे हैं 0.4 को 3 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? भाईजान पूछ रहे हैं 0.4 को 3 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? मशीन्स वर्थ 0.4 मिलियन, आगे ईच नहीं लिखा हुआ, इसलिए आई होप आई हैव आंसर्ड, थैंक यू। तो ईच नहीं लिखा हुआ ना, तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता आज कौन सा चैप्टर याद करेगा? ईओपी का आधा सफा पढ़ाया है ईओपी, नहीं ये बाकी काम तो हो तो हमें उससे कंसर्न नहीं, आपने 2.5 घंटे कम से कम टैक्स को तो देने हैं ना, बोले टैक्स को तो 2.5 घंटे देने होते हैं ना। ओके पेज नंबर 172, क्वेश्चन नंबर 30। कैरेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। भाई आप दोनों क्लास से निकल जाएं, उठें जल्दी, बी क्विक, निकलें, अजीब लोग हैं। इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, पेज नंबर 172। फॉर पास्ट 20 years you have noticed the following amounts appearing in the tax calculation। ये आपने ये अमाउंट्स किए हैं टैक्स कैलकुलेशन। पुराने जमाने में लोग होते थे सॉरी करते थे, हम निकल जाते हैं, खलो जाओ यार, अजीब जमाना आ गया है। इनिशियल अलाउंस ऑफ 4 मिलियन, इनिशियल अलाउंस ऑफ 4 मिलियन ऑन यूज इक्विपमेंट एक्वायर्ड लोकली फ्रॉम एमएसडी का मैंने कह दिया था कि ये सेकेंड हैंड प्लांट है, इसलिए इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस माइनस करने की इजाजत, बोले है या नहीं है? नहीं है। सेकेंड हैंड परचेज फ्रॉम पाकिस्तान है। नेक्स्ट यार, ये जो स्टाफ लोन का बैड डेट है ना, हाइब्रिड में थर्ड रो मोबाइल छीन लिया जाएगा आज, ये वापस कल किया जाएगा। ये जो स्टाफ लोन वाला बैड डेट है ना, ये माइनस करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हमने कहा था बैड डेट तब माइनस करने की इजाजत है जब पास्ट में कहा गया हो इनकम में। तो बैड डेट माइनस करने की 3 या 4 बातें होती थी मेरे ख्याल से। एक ये थी कि अकाउंटिंग किताबों में राइट ऑफ हो गया हो, टैक्स वाले उतना ही राइट ऑफ करने देंगे जितना अकाउंटिंग वाला ने किया, और रीजनेबल ग्राउंड्स हों, और चौथी शर्त ये होती थी पास्ट में इनकम में गया है। तो ये आप जरा सेक्शन में जाके देखिएगा, ये आपको दूसरा सिनेरियो लगेगा जिसमें स्टाफ को लोन दिया था शादी के लिए, मैंने एक बात की थी ऐसी समझाने के लिए, और वो लोन लेके भाग गया था, उसके बाद ना शादी का कार्ड आया ना वो उसके गांव में मिल रहा है। तो अब ये बंदा पैसे लेके भाग गया है, तो स्टाफ लोन पास्ट में इनकम में नहीं गया, दैट्स वाई ये बैड डेट के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। हाइब्रिड में थर्ड रो जरा जल्दी सवाल ढूंढ लें, क्योंकि हम तो ऑलमोस्ट खत्म करने लगे, वाइंड अप करें चीजें। पॉइंट नंबर 4, छोड़े यहाँ पर, इधर देखें, फाइनेंशियल चार्जेस अमाउंटिंग टू 1 लाख, मैं कह रहा हूँ इधर देखें व्हाइट बोर्ड की तरफ, फाइनेंशियल चार्जेस अमाउंटिंग टू 1 लाख एंड डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 3 लाख ऑन अ व्हीकल एक्वायर्ड ऑन लीज, हाउएवर लीज रेंटल पेड्स आर 4 लाख। तो हम लिख के आएंगे थ्योरी में, द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 3 लाख एंड फाइनेंस चार्जेस ऑफ 1 लाख विल नॉट बी अलाउड एज, रादर अ लीज रेंटल ऑफ 4 लाख विल बी अलाउड एज। वो इत्तेफाक आज ऐसा है कि 1 लाख जमा 3 लाख 4 लाख के बराबर बन रहे हैं, वो तो ऐसे बोंगी सी बात है। अच्छा, एक इंटेंजिबल की डेफिनेशन में ना बड़ी अजीब सी लाइन लिखी हुई थी, ऐसा खर्चा जो 1 साल से ज्यादा का फायदा दे उसको भी इंटेंजिबल बना दो। अब अनलकीली एडवर्टाइजमेंट को अकाउंटिंग वाले कभी भी एसेट नहीं बनाते बैलेंस शीट में, कभी भी नहीं, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि ऐसा खर्चा जिसका फायदा 1 साल से, उसको एसेट बना दो। इसलिए एन एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ मोर देन 1 year falls under the definition of intangible, therefore it will be amortized over a period of 12 years। और मैंने जब वो मिसाल करा रहा था तो मैंने आपको ये लिखवाया भी था कि एडवर्टाइजमेंट इसकी एक अच्छी एग्जांपल है। अजीब सी बात देखें ना, हो सकता है इंटरटेनमेंट भी आपको 3 साल फायदा पहुंचाए तो आप इंटेंजिबल बना दें,
अजीब सा वैसे लॉ है ये, अजीब सी बात इसने कर दी हुई है। असल में इनटेंजिबल की डेफिनेशन में एक ऐसी लाइन डाली हुई है जिस पे अकाउंटेंट्स बहुत एतराज़ करते हैं। ये क्या बोंगी मारी हुई है इसने। इनटेंजिबल की डेफिनेशन में एक लाइन है, एनी एक्सपेंडिचर दैट प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ मोर देन 1 year विल ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज इनटेंजिबल। चले मोबाइल को ऐसे करते हुए निकल जाए, जाएं 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 जल्दी, साथ वाले को ले जाएं आज।